السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل میرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن آز مرکزی جامعہ مسجد سرینگرس مز نماز جمعہ ادا کرنے برہ لوک اجتماع خطاب کران وونمت زِ ینہ وول ریت سٹھائی مبارک ریت انتظامیہ پزِ ات ریتس دوران لوکن عبادت کرنک پورٕ موقع فراہم کرن یُتھ زن لوک امہ ریتچ خدمت کرت ہیکن یل زن تمو بنگلہ دیشس ذکر کران وون زِ بنگلہ دیشس مز حالات بہتر سپدن ست ہیکہ خطس مز امن امان قائم سپدت تو پتہ کہ انشاءاللہ نئے ہفتہ پہ گژھِ ماہ رمضان شروع رحمت وول ریت مے پور واضح اندر کہ کس عظمت وول ریت اس پہ سایہ تراون وول انشاءاللہ یت مز اللہ تبارک و تعالیٰ اس تم دہ تہ عطا کران یت مز تس مغفرت تس عفو واریاہ زیادہ یوان وچھ اس تھو توقع انشاءاللہ خاص کر حکومت کی طرف انتظامیہ کی طرف کہ تم کرن رکاوٹ کا کھڑا یت کن تم پتمن ورین آئی رکاوٹ کھڑا کران جامع مسجد اندر یہ پابندی لاگان لکن جمع گھن خاطر چاہے جمعہ آسن چاہے آخر جمعہ آسی چاہے شب قدر آسی چاہے عید آسی اس تھو توقع حکومت نش کہ تم کرن کانٛہہ تیُتھ عمل کی یم سۭتۍ مسلمانن ہٕنٛدۍ جذبات احساسات مجروح گژھن یم سۭتۍ حکومتس خلاف لوکن ہٕنٛز نفرت زیادہ گژھِ تِکیازِ اگر یم چیز چھِ یِوان کرنہٕ تُہۍ وٕچھِو کہ مسلمانن ہٕنٛدٮ۪ن یم زن دیٖنی فرٲیض چھِ یمن دیٖنی فرٲیضن منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ تہِ رُکاوٹ پٲدٕ یِن کرنٕچ أسۍ تھاوو توقع کہ انشاءاللہ امن سان سکون سان لوکن یہ یور ینک اجازت دن جوانن لۄکٹٮ۪ن ماجن بزرگن بینن تم ین یور عبادت کرن تلاوت کرن ام پتہ حکومت تہ کر سہ عمل بنائے آسان فیسلٹیٹ کر نہ کہ کانٛہہ بندش یا کانٛہہ رکاوٹ تراوی انشاءاللہ تو پتہ کہ انشاءاللہ نئے سیامس اندر خاص کر جمعہن اندر تہ یم زن دور دراز علاقوں پہ لکھ یوان تم پتہ سٹھاہ اس مایوسی گژھان کہ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ کہ مرکز سون یُس ییٚتہِ کٮ۪ن مسلمانن ہُنٛد اولین ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مرکز چھُ ییٚلہِ سُہ طاقت سۭتۍ بنٛد چھُ یِوان کرنہٕ ییٚلہِ سُہ فورسہٕ سۭتۍ بنٛد چھُ یِوان کرنہٕ لُکن چھِ سٹھاہ تکلیف گژھان جذبات چھِ سٹھاہ مجروح گژھان اس لیے أسۍ تھاوو توقع انشاءاللہ کہ حکومت کر کانٛہہ مداخلت سانٮ۪ن دیٖنی معاملاتن منٛز کینٛہہ تہٕ اَسہِ دِیِن پنٕنۍ اسلٲمی حقوٗق دیٖنی حقوٗق ادا کرنُک پوٗرٕ موقع انشاءاللہ یتھ جنوٗبی ایشیاہس منٛز کر امن و امان تۄہہِ چھو پتہٕے کہ بنگلہ دیشس منٛز تہِ گٔے وۄنۍ نٔوۍ انتخابات تتہِ تہِ چھِ تِہنٛدٮ۪ن تتہِ کٮ۪ن مسلمانن خٲطرٕ تہِ اللہ تعالیٰ ہس دعا منگان پتہٕ تِمن تہِ کر بہتری تہٕ بہتری عطا تۄہہِ چھو جموں کشمیر اسمبلی ہند بجٹ اجلاس یت جمس مز جاری تتہ آز تہ بحثس دوران اسمبلی ممبرو طرف پنن علاقن ہند مسئلہ وتلاوان سرکارس منگ کرنا آمز یمن علاقن مز لوکن راحت دنس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنہ ین یل زن سرکار طرف ممبرن ہندین سوالن ہند جواب دیوان ایوانس ون آو سرکار جموں کشیر ہز یکساں تعمیر ترقی ہز وعدہ بند اسٹرکچر ہے اس میں صحیح بول رہی ہے پولیس تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن جس طرح فارسٹ پروٹیکشن فورس ہے سر میرا صرف ایک ہی سوال تھا کہ سر میں پالیٹکس نہیں لانا چاہتا ہوں ممبر اسمبلی کلگو محمد یوسف تیرگیم بھارت بند کالہ حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکار طرف یہ لیبر لاہن مز تبدیلی کرنا آئی تتہ لوکن مز امہ حوالہ تشویش پید سپدمت تو یہ وجہ پورے ملکس مز ات خلاف آواز بلند کرنا آمد جو پروٹیسٹ تھا وہ پروٹیسٹ ہی نہیں تھا بلکہ پورے ملک میں 10 بڑی ٹریڈ یونینز کی اور کئی اکائیوں کی کال تھی جنرل اسٹرائک کی کام بند کرنے کی وہ اسی لیے جو اس سرکار نے لیبر قوانین کو ختم کیا جو لیبر قوانین بنے تھے بڑی لمبی جدوجہد کے بعد برٹش پیریڈ میں بھی جس میں یونین بنانے کا ادھیکار اور اس کے علاوہ اسٹرائک کرنے کا ادھیکار ان کو ختم کر دیا اور مالکوں کا جو بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں جن کے
कॉरपोरेशंस हैं उनके हक में, ताकि उनको नफ़ा कमाने में कोई रुकावट न पड़े। ये सरकार जो कहती है सबका साथ सबका विकास, वर्किंग क्लास की हिमायत नहीं, वर्किंग क्लास के राइट्स को ख़त्म करने का प्लान है। और मुफाद किन का है? जो बड़े रईस है, बिलियनर्स। ये मेरा भारत नहीं, मेरा भारत है जहाँ वर्किंग क्लास आगे बढ़े। और इसी वजह से जम्मू कश्मीर में भी यहाँ एहतजाज हुआ, रुकावटें रही कश्मीर में भी, यहाँ भी, लेकिन फिर भी एहतजाज रहा। और एहतजाज था क्या? अधिकार मिले हमें, जो हमने लड़ाई लड़कर वर्किंग क्लास ने हासिल किए हैं। वो अधिकार क्या है? यूनियन बनाने का अधिकार और एहतजाज करने का अधिकार। उसमें प्रेस रिपोर्टर्स भी, यूनियंस भी शामिल थी। उनका भी अधिकार है कि वो काम चलाते हैं, चैनल चलती हैं तो उनकी वजह से चलती है। लेकिन जहाँ तक उनके अधिकार का ताल्लुक है, वेजेस का ताल्लुक है, उनके फ्यूचर का ताल्लुक है, उस बारे में भी एहतजाज वो कर ले, कभी गिला करे कहीं, शिकवा करे कहीं, उनको वो इजाज़त नहीं। ये अटैक है हमारी जनता पर, मुल्क की जनता पर। तो इसीलिए मुल्क का मतलब है यहाँ की जनता। जनता कौन है? खेती में काम करने वाले और सड़क पर, दफ्तरों में काम करने वाले हमारे मेहनत कश अवाम। मेहनत कश अवाम के राइट्स को आँच आ जाए, वो हमें मंजूर है। हैंडी के वाले भी जो है अभी भी धरने में बैठे हैं। आपने सदर में आवाज़ भी उठाई है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पे बैठे हैं। पूरा जब मसला हल नहीं हुआ, वो बेचारे और कर लेंगे क्या, करेंगे क्या? वो तो कुछ मांगते हैं, उसके बारे में अभी तक कुछ किया नहीं गया, तो लाजमी तौर पर एहतजाज होगा ही। जम्मू कश्मीर सबक वज़ीर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर कमर अली आखून ये मुख्तसर अदालत पत GMC जमिस मज आज सुबह फौत सपद तत नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़ीर सकीना यतूत दोम लीडरों तरफ GMC जुम गचित लवाकिन सत यकजहती तो तज़ियत इजहार करना आमुत। कमर अली आखून सदिस फौत सपदनस पे ये असम्बली मज 2 मिनटन हज छप कर तिमन खराज पेश करना आव। तत तिहज सियासी खदमात गशन आमच। ये जन मुख्तलिफ सियासी तो समाजी लीडरों तरफ कमर अली आखून सदिस फौत सपदनस पे दुख इजहार करना आव। जैसे ऑनरेबल डिप्टी CM साहब ने कहा है कि ये एक बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे और मेरे साथ मिनिस्टर भी रहे हैं 2008 से लेके 14 तक, और कादिसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं। और बहुत शरीफुल नफ्स, ऑनेस्ट, और लोगों में इतने मतलब हमदर्दी इनके लिए थी। लोग इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, जो खासकर करगिल लद्दाख के लोग जो थे। तो आज इनके बिछड़ने का मुझे लगता है हम सबको दुख तो है ही है, क्योंकि हमारी पार्टी से एक ऐसे लीडर चले गए जिनका जो पैदा हुए हैं कमी, वो कोई शायद पूरी नहीं कर सकता है। क्योंकि बहुत ऐसे इंसान मिलना जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। पार्टी तो दुख में है ही, पार्टी को दुख है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं लेह और करगिल के लोग, तो उनके साथ ऐसा एक हमदर्द लीडर हैं जो बिछड़ गया है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और उसके फैमिली के जो लोग थे, उनके भाई यहाँ आए हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है, और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा दुख इनके फैमिली को हो। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे और कमर अली आखून साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और यहाँ पे हम इसलिए आए, डिप्टी CM साहब, तनवीर साहब और मैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया है, उनकी हिदायत पे प्रिंसिपल यहाँ GMC के हैं, उनको मैंने हिदायत दिए हैं कि जो चीज़, जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे भी डेड बॉडी पहुँचानी हो, तो उसमें हर एक चीज़ में मदद करें जो भी पॉसिबल हो। हम उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके फैमिली के साथ हमारा दुख का इजहार जो है, हम बराबर उसमें शामिल हैं। जब हम तीनों फिर हम यहाँ पे आए हैं, अब ये हॉस्पिटल GMC मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उनकी फैमिली यहाँ हमारे साथ खड़ी है। अब उनकी डेड बॉडी यहाँ आई है अफसोस करने के लिए। अब हम अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन जो कमी आई है, ये कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते। ना ये करगिल के लोगों के लिए पूरी हो सकती है, ना लद्दाख के लिए, ना जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। मैंने वही कहा कि ये कमी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है, ये कमी खिता लद्दाख और करगिल को भी है, और पूरे जम्मू कश्मीर को है, क्योंकि ऐसे लीडर बड़े कम मिलते हैं।
ये लीडर नहीं, हम ये संत कह सकते हैं, और जिन्होंने हमेशा लोग कमाए हैं और लोगों के दिलों में इनकी अपनी एक जगह थी। और ये वाहिद वो शख्स थे जिनके खिलाफ कभी कोई आवाज़ इनके खिलाफ नहीं उठती थी, हमेशा लोग प्यार करते थे। कई लोग होते हैं, हम लोग जैसे हैं, हमारे खिलाफ भी कई लोग बात कर जाते हैं, बट ये एक ऐसे शख्स थे जिनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करता था, क्योंकि बड़े एक साफ दिल, एक ऑनेस्ट और बड़े एक ऐसे इंसान जिनके दिल में इंसानियत बसती थी। तो लिहाजा हम यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन पे हम सब यहाँ पे आए हैं। कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी फ़ोन किया कि वो डेड बॉडी वहाँ है, आप जाएं। तो सरकार की तरफ से हम तीनों यहाँ पहुँचे हैं, और हमारी सरकार की तरफ से भी इनके परिवार के साथ पूरी हमारी अफसोस करने के लिए सरकार के साथ सरकार की तरफ से इनके फैमिली के साथ पूरा हमें अफसोस है, और भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान जो हमारी हिंदू फिलासफी है उसके तरीके से तो यही हम कहते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे और इनकी आत्मा को शांति दे, और परिवार को इतनी हिम्मत दे कोई सदमे से बाहर निकल सकें और इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली श्यामलाल शर्मान महबूबा मुफ्ती हंदिस बयान हवाले कत करान वोनमुत मनफी सियासत करित महबूबा मुफ्ती लोग गुमराह करने कोशिश करान, ताहम लूकन यह मालूम PDP छन लूकन हज हमदर्द जमात। देखिए, मुझे तो अभी मैंने चिरंगू साहब की स्टेटमेंट ना कहीं पढ़ी है ना सुनी है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसमें इस तरह से जवाब दूंगा कि महबूबा जी को तो हमारी अमरनाथ यात्रा से भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। मेरी छोटी बहन है, मैं इस किस्म के शब्द उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन उनकी अप्रोच जो है वो प्रो टेररिस्ट और कश्मीर रही है। वो कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई ज़मीन जो उनकी है, पॉलिटिकल जो स्पेस उनने लूज़ कर दी है, वो उसको रिस्टोर करना चाहती हैं कि मैं कश्मीरियों की बड़ी हमदर्द हूँ। तो मुझे लगता है कि इस किस्म के शब्दावली का उनको उपयोग नहीं करना चाहिए कि डेमोग्राफी चेंज। क्यों भाई, कश्मीरी वहाँ नहीं रहने वाले थे, इवन पंजाबी फैमिली नहीं वहाँ पे रहने वाली थी, नॉन कश्मीरी जो थे वो कश्मीर में नहीं रहते थे। तो ये अगर उन्होंने बात कही है तो मुझे उनकी सोच पे जो है वो निराशा नहीं होती, क्योंकि उनकी सोच। मेंबर असम्बली पहलगाम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर मोहम्मद अल्ताफ कुलवन महबूबा मुफ्ती हंदिस बयान हवाले कत करान वोनमुत महबूबा मुफ्ती छुन शायद अमे हवाले मुकम्मल जान तो तिमन पज अमे हवाले जान हासिल करित बयान बाजी करें। देखिए, वो ट्रांजिट एकोमोडेशन है। मुझे लग रहा है महबूबा जी को क्लियर शायद इस बात की इल्म नहीं होगा। वो ट्रांजिट एकोमोडेशन है फॉर कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स के लिए और एम्प्लॉयज़ जो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। मुझे लग रहा है कि उसको इस बात का इल्म नहीं है। इट शुड बी ये उस तक बात पहुंचनी चाहिए। ये ट्रांजिट कैब है, ये कोई डेमोग्राफी। असम्बली मज BJP असम्बली मेंबर विक्रम रंधावान वोन जमिस मज मुसलमानों तरफ JDI कि जमीन पे गैर कानूनी कब्जे करना आमुत तज मेंबर असम्बली पहलगाम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर मोहम्मद अल्ताफ कुलवन अमे हवाले कत करान वोनमुत अमि सियासी जमात हंदन लीडरन छुन तो ताम कह चीज़ हजम सपदन योताम मुसलमान हज बरखिलाफी करन। वहीं पे विरोध किया। मैंने कहा आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ, आपका उठना बैठना मुसलमानों के खिलाफ, खाना पीना मुसलमानों के खिलाफ। इन जमात का ही जो मौक़िफ़ है वो मुस्लिम कुछ है, मुस्लिम एंटी मुस्लिम है, और तब तक इनको ये खलक से कुछ उतरेगा ही नहीं शाम को जब तक ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ न बोले। ऐसे स्टेटमेंट का क्या असरात हो सकते हैं? अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होगा। एक बंदे ने कहा, उससे क्या होगा? इधर थोड़ी हम गिदड़ धमकियों से डरने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोग शेर हैं, नहीं ज्यादा होंगे। अब कश्मीर में मुस्लिम है, ये जम्मू में मुस्लिम है, पीर पंचाल रेंज में है, चिनाब रीजन में है, तो इसको तकलीफ किस बात की है? मुझे लग रहा है इसको बेंगलोर के वो छिड़ांग थाना मंडी हिंद लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस में तरसीली लानन ही शहर पर करने हवाले कई हाई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन मांग करना आई, ताहम चुन आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक आवलिनस मज हन आई। मुकामी लूकों तरफ महकमे बिजली हिंदन जिम्मेदारन मांग करना आमद तरसीली लानन ही शहर पर करने हवाले गसन कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बचिन वल मुश्किल दूर करने yin।
रहीम, मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे इस जो पहू मल्ला है अपने वार्ड नंबर 6 राजधानी, हमारे यहाँ पे जो बिजली की तारें खंभे इस पर लगी हुई हैं दरख्तों पे, और कई आदमियों को यहाँ करंट भी लगा है। और जो हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पर भी उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो ऊपर वाले मेन स्विच है वो थ्रू लगाए हुए हैं, कहीं किसी को लग जाएगी, कोई मर जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा। और दूसरा ये है कि जो हमारा इधर हमारे पानी का मसला है, देखें जनाब, हमारे जो तारे हैं ये सब तमाम टूटी हुई है, धरती के नजदीक लगी हुई है, तो दरख्तों के साथ कोई आदमी मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा। वो जिम्मेवार महकमे वाले होंगे या यहाँ के जो लाइनमैन हैं वो जिम्मेवार होंगे। इसलिए हमारी सुनवाई करें और हम आकर हमारे देखें। और हमारे बिजली के बिल जो है हमारे यहाँ पे मीटर लगे हुए हैं, तो पहले तो हमें 520 आता था, अब उससे ज्यादा आता, कहीं किसी को 1400, किसी को 1500, किसी को 15,000 रुपया भी आ रहा है। तो इसलिए खदारा हमारा कुछ ऐसा करें कि हमें कुछ सहूलत हो जाए। राजधानी बी वार्ड नंबर 6 के देखो, एक बंदा हमारा मोहल्ले का पड़ोसी है, उसकी 15,000 रुपये महीने की बिल आ रही है, उसके घर में मीटर भी लगा हुआ है। वो बहुत आगे पीछे घुमाया, उस इंस्पेक्टर साहब को भी बताया, सबको बताया, पता नहीं उसका क्या चक्कर है, इसके बारे में इसका दोस्त किया जाए। गरीब आदमी है, वो दिहाड़ी के लिए गया हुआ है, नहीं तो वो उसने खुद आना था। और दूसरी बात ये है तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी जो तारें और खम्भों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि यहाँ रास्ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हर कोई गुजरता है यहाँ से, क्योंकि क्या नाम इसका हरे दरख्त हैं जिनके साथ तारें लगाई हुई हैं। इस तारों को भी रिपेयर किया जाए, और जो खम्भे भी नए आके जहाँ खम्भे की जरूरत है वहाँ आके लगाएं। डिपार्टमेंट का ये काम है, वो आके लगाएं। क्यों हमने बोला यहाँ के अगर किसी छोटे मुलाजिम है उनको बोलते बोलते बड़े अफसरों के पास जाओ, हमारे पास है नहीं है, कोटा नहीं है, हमारे पास खम्भे नहीं है, तो वो आगे से ये जवाब देते हैं। वो बोलते हैं हम आप अपने एमएलए को बोलो या किसी बड़े लीडर को बोलो। तो एमएलए साहब है हमारे, वो भी, उनसे भी मुलाकात नहीं, उनको भी हमने 1-2 बार बोला है, तो वो भी नहीं आते। देखो यहाँ भी सब जो भी आता वोट के टाइम आता है, ये करेंगे वो करेंगे, बाद में वोट लेके जेब में डाल के जीत के कुर्सी पे बैठ जाते। फोन तक नहीं, उनके फोन जो वो भी स्विच ऑफ हो जाते जब बाद में जीत के, तो ना कोई इधर देखता। आज तक हम सब आज तक हम वोट ही देते रहे, मगर कोई ध्यान ही नहीं रखता है। कम से कम गरीबों का तो ध्यान रखो, सब अमीरों का तो ये ध्यान रखते हैं सब, मगर जो अपने बराबर के होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, गरीबों को कौन देखता। तो इसीलिए हम यही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि ये गरीबों के ऊपर नजर रखें। पुलवामा आज इंतजामिया तरफ मार्केट चेकिंग अमल मज अन्न आमुत यथ दौरान दुकानदारन हिंद नरखनाम चेक करना आई, येल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज माह मुबारक पेश नज़र मार्केट चेकिंग शुरू करना आमज युद्ध जन गिरा फरोशी पर रूट लागन यी, येल जन दुकानदारन तंबिया करना आव ज तुम गसन सरकारी नरखनामन पर सख्ती सान अमल करें, युद्ध जन तिमन खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल मज अन्न यी। जो हमारे बड़े दिन होते हैं, जैसे रमज़ान अप्रोच कर रहा है, तो उसके बिना पे मार्केट चेकिंग जो है ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी, उसमें ज़्यादा सूरत लाई जाएगी ताकि लोगों को जो है मयारी खाना मैसर हो। हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से, जिसमें ADC साहब भी जो हमारे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फूड सेफ्टी के हैं, तो उनकी हिदायत पे जो है जो भी मीट शॉप्स हैं उनके लिए गिलास फ्रेम लगाना मैंडेटरी बना दिया गया है। जो भी बिना गिलास फ्रेम के दुकान चलाता है या ये जो मीट बाहर रखते हैं, तो गोश्त बाहर रखते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला अनंतनाग से तोलक थान वाले लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमज माह मुबारक नजर तल थवित गि मार्केटन हज चेकिंग अमल मज अन्न यीन युद्ध जन गिरान फरोशी पे रूट लागन यी तो आम लुकन राहत वात। लोगों तरफ वन आमद युथ माह रमजान शुरू सपदन तो बाजरन मज गिरान फरोशी अरूजस वातन यम सत आम लोग मुश्किलन मज हन येल जन यमो लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आई अत पे रूट लागनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलन यीन। मे नाम मोहम्मद अब्बास डार, बस वेजिटेबल सब्जी प्रेजिडेंट, वेजिटेबल सब्जी प्रेजिडेंट मोहम्मद अब्बास डार।
इंशाअल्लाह रहमान रेट वनकन ति ठीक ये ब्रोट कुन ति रोजन ठीक माल ति साफ कह ऑब्जेक्शन कह इंशाअल्लाह ना कह ग्राव तुथ माल साफ मालस डिफिकल्टी कह एडमिनिस्ट्रेशन ये ठीक ये डिप्टी साहब वारिया रुत तमिस करान अपील कि पान तह जायज मार्केटुक तुम वुचन पान तह करन मोमी यह रुत DC साहब इंशाअल्लाह रहमान अमिस पे वमेद यह बनाए टीम उस मार्केट चेकिंग करे सह साफ पाक पे प्रेत जहाँ तक ताल्लुक है इस वेजिटेबल मार्केट अनंतनाग का, तो यहाँ पे रेट्स तो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे सब्जी भी बहुत अच्छी बेची जा रही है। रेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, रेट्स भी ठीक है, लेकिन अब उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले रमजान के मुबारक महीने में रेट्स ठीक रहेंगे और साफ नाज़रीन खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।